اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو سورسز آف شریعہ ہیں، جو مصادر شریعت ہیں ان کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے پچھلی کلاس میں جو ایک سورس ہے اجماع کا، اس کا جائزہ لیا تھا، اور جو شریعت کے مصادر ہیں جن سے ہم نے ایسے سورسز جن سے ہم شریعت لے سکتے ہیں یا شریعت لیں گے، ان میں سے سب سے پہلا سورس قرآن ہے، اس کے بعد سنت، اس کے بعد اجماع، اور اس کے بعد ایک سورس ہے اقوال صحابہ۔ یعنی یہ بھی ایسا سورس ہے کہ جہاں سے ہمیں شریعت مل سکتی ہے، ہم شریعت لے سکتے ہیں، کیونکہ جو صحابہ اکرام تھے، اقوال صحابہ سے مراد ہے کہ صحابہ اکرام کے اقوال، ان کی باتیں، ان کے ارشادات۔ تو صحابہ اکرام جو تھے، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کو اپنے سامنے دیکھا آ، افعال کرتے ہوئے، اقوال ارشاد فرماتے ہوئے، تو ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی جو بات کرے گا، وہ محض اس کی ذاتی رائے یا ذاتی اجتہاد میں بھی نہ ہو، بلکہ وہ جو بات کرے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو وہ کام کرتے دیکھا ہو، یا اس نے وہ بات اللہ کے رسول سے سنی ہو۔ تو اس اعتبار سے اس کو بھی، اقوال صحابہ کو بھی شریعت کا ایک سورس کہا جا سکتا ہے۔ تو کسی شرعی مسئلے میں اگر صحابہ کرام کا صریح یا سکوتی اجماع نہ ہو، یعنی کسی مسئلے پہ اگر صحابہ کرام کا صریح سے مراد یہ ہے کہ بالکل واضح بول کے، اور سکوتی سے مراد یہ ہے کہ خاموشی سے، اگر صحابہ اکرام کا صریح یا سکوتی اجماع نہ ہو اور اس میں کسی ایک صحابی یا ایک سے زائد صحابہ کا کوئی قول پایا جائے، تو وہ کتاب و سنت اور اجماع کے بعد فقہ اسلامی کا سب سے بڑا ماخذ اور حجت ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کا صریح یا سکوتی اجماع نہ ہو اور اس میں کسی ایک صحابی یا ایک سے زائد صحابہ کا کوئی قول پایا جائے، تو وہ کتاب و سنت اور اجماع کے بعد فقہ اسلامی کا سب سے بڑا ماخذ اور حجت ہے۔ یعنی جو ان کا ایک قول ہے صحابہ کرام کا مجموعی طور پہ، وہ بڑا ماخذ ہے قرآن کے بعد اور سنت اور اجماع کے بعد۔ یعنی اس کا اتباع اور اسے قیاس پر مقدم رکھنا ضروری ہے۔ یعنی ایک سورس جو شریعت کا ہے وہ قیاس بھی ہے، تو اقوال صحابہ کو اس سورس پر زیادہ اہمیت دی جائے گی، اس کو پریفرنس دی جائے گی، چاہے اس کی نوعیت یہ ہو کہ اس کا ادراک رائے اور اجتہاد سے نہ ہوتا ہو، کیونکہ ایسی صورت میں وہ سنت کے بیان ہی کی ایک قسم ہوگا، اور چاہے اس کی بنیاد رائے اور اجتہاد پر ہو۔ یعنی اس کو فوقیت ہی دی جائے گی، چاہے وہ جو قول ہے صحابہ کا، وہ چاہے ان کی اپنی رائے اور اجتہاد پر ہی مبنی ہو، تو بھی اس کو قیاس پر زیادہ فوقیت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ تو یہ ایک صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہاجرین و انصار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ جمہور علماء یہی کہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے قریب ترین لوگ تھے، جنہوں نے آپ کا مشاہدہ کیا، آپ سے رسالت سے متعلق تمام چیزیں اخذ کیں، اور آپ کی زبان مبارک سے شریعت کا بیان سنا۔ ان کی آراء میں اس چیز کا احتمال تھا ان کی آراء میں اس چیز کا احتمال تھا کہ وہ سنت ہوں، یا کم از کم سنت سے ماخوذ ہو۔ یعنی جو ان کی رائے ہے، جو انہوں نے بیان کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سنت ہوں، یا کم از کم سنت سے ماخوذ کوئی چیز ہو جو انہوں نے رائے اختیار کی ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی آراء کو
अपनी आरा पर मुकद्दम करें, चाहे उनकी बुनियाद राय और इज्तिहाद पर ही क्यों ना हो, चाहे उन्होंने वो बात जो कही है वो अपनी राय और इज्तिहाद ही से क्यों ना कही हो। अलबत्ता उनमें से अगर किसी का कौल किताब और सुन्नत की किसी नस के खिलाफ पड़ता हो तो नस को उस पर मुकद्दम करना नागुज़ीर है। यानी अगर ऐसा हो कि एक सहाबी का कौल हो और उसके मुकाबले में एक नस पाई जा रही हो और दोनों का आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा हो, तजाद हो रहा हो, तो इस सूरत में जो नस होगी, नस से मुराद है कुरान की या सुन्नत की कोई दलील, तो इस सूरत में जो नस होगी उसको प्रेफरेंस देंगे सहाबी के कौल के ऊपर, अगर दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो। क्योंकि हो सकता है कि उस सहाबी को वो नस ना मिला हो, या या मसला बयान करते वक्त वो उसके जहन में ना आया हो। इसका तकाजा ये भी है कि अगर किसी मसले में सहाबा के एक से जायद अक़वाल पाए जाएं तो उन्हीं में से एक कौल को उसकी दलील देकर इख्तियार किया जाए, क्योंकि उनकी मजमूई आरा से निकलना जमहूर उलमा की निगाह में उनके खिलाफ एक किस्म का अदम एतमाद है। यानी किसी मसले में अगर सहाबा किराम के अक़वाल पाए जाते हैं तो बेहतर ये है कि उनमें से जो कौल, उन सहाबा किराम में से जो कौल नस के ज्यादा करीब लगता है और कुरान और सुन्नत के ज्यादा करीब लगता है, उस कौल को इख्तियार इख्तियार कर लिया जाए, ज्यादा बेहतर ये है। तो अगर कोई शख्स ये करे कि उन सभी अक़वाल को छोड़ के कोई और राय इख्तियार कर ले, तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि सहाबा किराम पर ये एक तरह का अदम एतमाद का इजहार है। अइमा अरबा से मनकूल है कि वो सहाबा किराम के अक़वाल की जुस्तजू करते, उन्हें हुज्जत तस्लीम करते और किसी हाल में उनके दायरे से बाहर ना जाते थे। इस पर भी उन सब का इत्तेफाक है कि एक सहाबी का कौल किसी दूसरे सहाबी के लिए हुज्जत नहीं है। यानी अगर एक सहाबी की राय है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे सहाबी की भी वही राय हो। अगर एक दूसरे सहाबी की राय अलग है तो वो उनको इस बात का इख्तियार है, क्योंकि हो सकता है कि एक सहाबी ने अगर एक राय इख्तियार की है तो हो सकता है कि उसको कोई नस ना मिली हो, कोई अल्लाह के रसूल का कौल ना मिला हो, तो इस वजह से उन्होंने एक राय इख्तियार की हो। तो दूसरे सहाबी के पास वो नस मौजूद हो तो एक सहाबी की राय दूसरे सहाबी के लिए लाजमी नहीं है कि वो इख्तियार करें, उनकी अलग राय हो सकती है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुझे कोई चीज की सुन्नत में मुझे कोई चीज नहीं मिलती तो मैं सहाबा के कौल को इख्तियार कर लेता हूँ। सबसे पहले सुन्नत देखता हूँ, फिर सहाबा कराम के कौल को इख्तियार कर लेता हूँ। उनमें से जिसका कौल चाहूं लूं और जिसका चाहूं छोड़ दूं, लेकिन मैं उनके कौल से निकल कर किसी दूसरे का कौल इख्तियार नहीं करता। यानी ऐसा नहीं करता कि सारे सहाबा कराम का कौल छोड़ दूं। और जब मामला इब्राहिम नखई, शाबी इब्ने सीरीन, हसन बसरी, अता और सईद बिन मुसैयब तक पहुंचता है, और उन्होंने कुछ दूसरे नाम भी लिए तो वो भी इज्तिहाद करने वाले लोग थे, इसलिए उनकी तरह मैं भी इज्तिहाद करता हूँ। यानी वो कहते हैं कि जब तक मामला सहाबा किराम तक रहता है तो मैं सहाबा किराम की राय में से ही कोई राय इख्तियार करता हूँ। लेकिन जब मामला आगे पहुंच जाता है, ताबीन तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद फिर मेरे लिए जरूरी नहीं होता कि मैं ताबीन में से कोई कौल इख्तियार करूं, बल्कि जिस तरह वो इज्तिहाद करते थे मैं भी इज्तिहाद कर लेता हूँ। तो सहाबा किराम की राय में से कोई राय मैं जरूर इख्तियार करता हूँ। इमाम मालिक ने अपनी किताब मुअत्ता में सहाबा किराम के बहुत से फतावा नकल किए हैं और बहुत से अहकाम में उन्हीं पर एतमाद किया है। बल्कि वो उनके फतावा को एक तरह से सुन्नत ही का बयान समझते हैं। इमाम मालिक जो है उनके फतावा को सुन्नत का बयान समझते हैं, यहाँ तक कि बाज औकात वो उनके होते हुए बाज मनकूल रिवायात को छोड़ देते हैं। और यही उन बातों में से एक बात है जिनमें इमाम शाफी ने अपने महबूब तरीन उस्ताद यानी इमाम मालिक से इख्तलाफ किया। मिस्र के इमाम लैस बिन साद को इमाम मालिक ने जो खत लिखा, उसमें उन्होंने तस्रीह की कि सहाबा के कौल को किसी शर्त या कैद के बगैर इख्तियार करना जरूरी है। यानी इमाम मालिक इतनी ज्यादा अहमियत देते थे कौल सहाबी को। इमाम शाफी अपनी किताब रिसाला में लिखते हैं, अगर मुझे किताब सुन्नत या इजमा या उसके हम माना किसी दूसरी चीज में जो हुक्म लगाने वाली हो या उसके साथ कियास हो, कोई चीज नहीं मिलती तो मेरा मसलक सहाबा में से किसी के कौल को इख्तियार कर लेना है। अपनी किताब अल उम में वो लिखते हैं,
اگر وہ یعنی کسی مسئلہ کا شرعی حکم کتاب و سنت میں نہ ہو تو ہم صحابہ کے اقوال یا ان میں سے کسی ایک قول کی طرف ہو جاتے ہیں۔ امام احمد کی رائے ہے کہ میں نے ہر مسئلے میں جواب یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے دیا ہے جہاں تک اسے حاصل کرنا میرے بس میں تھا، یا صحابہ یا تابعین کے کسی قول سے۔ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل گئی تو میں ہرگز اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف نہیں گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں مل سکی تو تو خلفائے اربع راشدین کی طرف آیا ہوں۔ اگر ان سے کوئی کول نہیں مل سکا تو دوسرے بڑے صحابہ کی طرف آیا ہوں، اور جب ان سے بھی کوئی کول نہیں مل سکا تو تابعین اور تبع تابعین کی طرف آیا۔ حنفی علماء میں سے ابو الحسن کرخی کا مسلک یہ ہے کہ صحابی کی تقلید اس وقت واجب نہیں ہے، یعنی اس کا کول حجت نہیں ہے، جب اس کے کول میں رائے اور اجتہاد کی گنجائش ہو۔ ان کی رائے یہ ہے کہ جب کسی صحابی کا ایسا ایسا کول ہو کہ جس کے اندر ان کی اپنی رائے اور اجتہاد شامل ہو تو اس کو لینا یا اس کی تقلید کرنا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کی طرف منسوب کیا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سے فروعی مسائل میں بعض صحابہ کے اقوال کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ کرخی کے اس مسئلے کی تائید فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔ دوسری طرف حنفی علماء ہی میں سے ابو سعید بروئی جو کرخی کے ہم اثر تھے کا مسلک یہ ہے کہ صحابہ کا قول حجت ہے، کیونکہ اسی کی تصریح خود امام رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اس مسلک میں ابو سعید بروئی کی تائید علماء احناف میں سے ابو بکر جساس اور شمس الائمہ سرخسی نے کی ہے۔ شیخ ابو زہرا نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متعلق اپنی کتاب میں کرخی رحمہ اللہ کے مسلک کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کی طرف نسبت کو غلط ثابت کیا ہے، کیونکہ اس نسبت کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ امام رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب نے جب بعض صحابہ کے اقوال کے خلاف فتویٰ دیا تو انہیں ان صحابہ کے ان اقوال کا پتہ تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ اغلب یہ ہے کہ انہیں ان کا پتہ نہ تھا، یعنی انہوں نے اگر اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ انہیں ان کے اقوال کا پتہ نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو وہ ہرگز ان کے خلاف فتویٰ نہ دیتے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے بہت سے دوسرے فقہی مسائل میں اپنی آراء کو اس وقت فوراً چھوڑ دیا جب انہیں ان مسائل میں کسی صحابی کے قول کا پتہ چلا۔ اسی طرح اصول فقہ سے متعلق شافعیہ کی اکثر کتابوں میں امام شافعی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے قدیم مذہب میں تو صحابہ کے اقوال کو لیتے تھے، لیکن اپنے جدید مذہب میں وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ یعنی ان کے دو اقوال ہیں، ایک قدیم اور ایک جدید۔ قدیم میں وہ صحابی کے قول کو لیتے تھے، جبکہ جدید میں وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں شافی علماء کے اس دعوے کو غلط ثابت کرتے ہوئے بتایا کہ امام شافی کا قدیم اور جدید ایک ہی مذہب تھا، اور وہ تھا صحابہ کرام کے قول کو اختیار کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دو اقوال الگ الگ نہیں تھے، بلکہ ان کا ایک ہی قول تھا، اور اسی پر اور وہ قول یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام کے قول کو اختیار کرتے تھے، اور اسی پر امام شافی کے وہ اقوال دلالت کرتے ہیں جو اوپر ہم نے الرسالہ اور الام سے نقل کیے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں امام شافی کے بالکل آخری زمانے کی تصنیف ہیں۔ تاہم اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صحابی کے قول کو حجت تسلیم کرنے کے لیے یہ بھی ضروری سمجھتے تھے کہ قیاس سے اس کی تائید ہوتی ہو، جیسا کہ الرسالہ میں ان کے قول سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے صحابہ کے اقوال کو اس صورت میں حجت ماننے سے سختی کے ساتھ انکار کیا جب اس کی بنیاد رائے اور اجتہاد پر ہو۔ امام ابن حزم جو ایک ظاہری اسکول آف تھاٹ ہے، اس کی امام ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک جو قول ہے اس کی رائے اگر صحابی کے ذاتی اجتہاد پر ہے تو اس صورت میں وہ اس کو ماننے سے سختی سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ تقلید ہے، اور تقلید چاہے کسی زندہ کی ہو یا مردہ کی کسی طرح جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر صحابہ کرام بشر ہی تو تھے۔ اس رائے میں ابن حزم کی تائید شوکانی نے بھی کی ہے، تاہم یہ دونوں یعنی ابن حزم اور امام شوکانی صحابہ کرام کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، اور ان کی کتابیں ان کے اقوال سے بھری ہوئی ہیں، لیکن اس لحاظ سے نہیں کہ وہ حجت ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ اپنی آراء میں ان سے تائید و تقویت حاصل کی جائے۔
और आइमा अरबा के मुताबिन में से अपने मुखालिफिन पर इत्माम हुज्जत किया जाए, जो सहाबा के अक़वाल को हुज्जत मानते हैं। इन दोनों हजरात की राय अपने मुनफरिद होने की वजह से अगरचे अजीब दिखाई देती है, लेकिन अगर खालिस उसूली नुक्ता नजर से देखा जाए तो इसकी दलील बड़ी मजबूत है, क्योंकि अक़वाल सहाबा के हुज्जत होने पर कुरान या सुन्नत से कोई दलील नहीं मिलती। शायद इमाम बुखारी और दूसरे मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में सहाबा और ताबीन के अक़वाल से जो इस्तदलाल किया है, उसकी वजह यह नहीं है कि वो उन्हें हुज्जत मानते थे, बल्कि ये इस्तदलाल उन्होंने सहाबा और ताबीन की ताजीम के तौर पर किया है, क्योंकि उन्हें इख्तियार करना कियास या बाद वालों की आरा से बेहतर है। ये भी कहा जा सकता है कि वो उनको अपने मसलक की तायीद पर पेश करते थे। यहाँ तक बहस का ताल्लुक सहाबा कराम के अक़वाल से था, ताबीन के, यानी यहाँ तक जो बात है वो सहाबा कराम के अक़वाल से थी। ताबीन के अक़वाल आइम्मा अरबा और दूसरे आइम्मा के नज़दीक हुज्जत नहीं है। जैसा कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने अपनी इस इबारत में, जिसका हमने शुरू में तज़किरा किया है, उसकी सराहत कर दी है। यानी ताबीन के बारे में राय ये है कि वो हुज्जत नहीं रखते, जिसका हमने शुरू में तज़किरा किया है, इसकी सराहत कर दिया। ताहम ये तमाम आइमा उन्हें इख्तियार करते हैं और उन्हें अपनी आरा पर मुकदम रखते हैं। जैसे इमाम अबू हनीफा बसा औकात इब्राहिम नखी के अक़वाल को इख्तियार करते हैं, इमाम मालिक, सईद बिन मुसैयब, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर और जैद बिन असलम रहिमहुल्लाह के अक़वाल को, और इमाम शाफी अत्तार रहिमहुल्लाह के अक़वाल को। इमाम अहमद तो सईद बिन मुसैयब और दूसरे ताबईन के अक़वाल को इस कसरत से इख्तियार करते हैं कि यूं लगता है कि शायद वो उन्हें हुज्जत मानते हैं। इसकी वजह उनकी तबीयत में पाई जाने वाली सख्त एहतियात थी, या राय और इज्तिहाद से फतवा देने की जिम्मेदारी से जहां तक मुमकिन हो फरार। तो अक़वाल सहाबा के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो अक़वाल सहाबा हैं उनको अगर एक बंदे ने कोई कुरान और सुन्नत से कोई चीज समझी है, तो उसकी तायीद के तौर पे एक कौल सहाबी को लिया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। अलबत्ता अ, अगर जो है नस हो एक तरफ और एक तरफ कौल सहाबी हो, तो इस सूरत में नस को कौल सहाबी पर फौकियत हासिल होगी। बहरहाल ये मसादिर शरीयत में से एक मस्दर है, एक सोर्स है शरीयत का, और इससे आइमा ने बहुत ज्यादा इस्तदलाल भी किया है। उसके बाद जो अगला सोर्स है अ, कुरान और सुन्नत का, इसका शरीयत का जो अगला सोर्स है वो है क्यास का प्रिंसिपल। क्यास क्या है? क्यास आप यूं समझ लें कि जो शरीयत की नसूस हैं, जो शरीयत के अहकामात हैं, वो महदूद हैं, और जो लोगों के मसाइल हैं वो लामहदूद हैं। और क़यामत तक जो है नई नई चीज़ों का ज़ुहूर होता रहता है। तो ऐसे में उन चीज़ों का जो नई चीज़ें जो है वो जिनका ज़ुहूर होता है, उन पर कोई हुक्म लगाना, उनकी हलाल या हराम होने का हुक्म लगाना, और वो जो हुक्म लगाया जाता है वो एक जो शरीयत में हुक्म मौजूद है अ, उसके साथ रिजेम्बलेंस की वजह से एक हुक्म लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे अ, नसूस में ये बात आई है कि शराब का पीना हराम है, और उसके बाद अब हमारे दौर में कई ऐसी चीजों का ज़ुहूर हो चुका है, दरियाफ्त हो चुकी हैं, इजाद हो चुकी हैं, कि जिनके अंदर भी नशा पाया जाता है। ड्रग्स की बहुत सारी अकसाम हैं, चर्स है, इसी तरह की और कई चीजें हैं। तो ये जो चर्स है या ड्रग्स में से कोई और चीज है, अफ्यून है, तो अफ्यून के बारे में शरीयत में वाज़ेह तौर पे हुक्म नहीं आया। शराब के बारे में आया है, अफ्यून या चर्स के बारे में नहीं आया। तो अब क्या ये जो अफ्यून है, ये चर्स है, इसका हुक्म क्या होगा? क्या शरीयत इसको जायज कहती है या इसको नाजायज कहती है? तो शराब के साथ रिजेम्बलेंस की वजह से, उसके साथ मुमासलत की वजह से और इल्लत के एक होने की वजह से जो हुक्म उसका शराब का था, वही हुक्म इस चर्च पे या अफ्यून पे लगाना
और ये जो हुक्म लगाया जाता है वो एक मुमासलत की वजह से, इल्लत के एक होने की वजह से लगाया जाता है। तो इसी चीज को कियास कहा जाता है। यानी वो जो हुक्म अ, असल चीज पे लगाया गया था, वही हुक्म एक दूसरी चीज पे लगा दिया जाए जो कि जिसका तज़किरा नुसूस में मौजूद नहीं है। और वो जो हुक्म लगाया जाता है वो इल्लत के एक होने की वजह से लगाया जाता है। जो इल्लत शराब की हुर्मत में की वजह से थी, जिस इल्लत की वजह से शराब को हराम कहा गया था, चूंकि वही इल्लत अफ्यून में पाई जाती है, तो इस वजह से जो हुक्म शराब का था वही हुक्म जो है इस पर लगा दिया जाएगा। तो इस सारी चीज को क्यास कहा जाता है। तो लुगत में क्यास के माना नापने और अंदाजा करने के हैं। इसका जो लुगवी मतलब है वो है नापना और अंदाजा करना। और इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि किसी ऐसी चीज को जिसका हुक्म किताब और सुन्नत से मालूम नहीं है, किसी ऐसी चीज के साथ रख कर उसका हुक्म मालूम किया जाए जिसके हुक्म का किताब या सुन्नत में जिक्र हुआ हो। यानी एक ऐसी चीज है जिसका जिक्र हमें कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता, और एक ऐसी चीज है जिसका हुक्म कुरान और सुन्नत में मिलता है। तो जिसका हुक्म कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता, उसके साथ ऐसी चीज को रखा जाए जिसका हुक्म कुरान और सुन्नत में मौजूद है। और जो हुक्म उसका था जो किताब और सुन्नत में मौजूद थी, वही हुक्म जो है उस पर अप्लाई कर दिया जाए। जबकि उन दोनों के दरमियान कोई मुश्तरक इल्लत पाई जाए। दोनों के दरमियान कोई एक मुश्तरक इल्लत पाई जानी चाहिए जो इसकी हुर्मत की वजह बने। जैसे नबीज का शराब जैसे नबीज का जैसे नबीज का शराब पर कियास करना, या आप समझ लें कि अफ्यून को शराब पर कियास करना। क्योंकि किताब सुन्नत से शराब का हुक्म ये कि वो हराम है मालूम है। किताब सुन्नत से मालूम है कि शराब हराम है, और उस हुक्म की इल्लत यह है कि वो नशा देती है। उसके हराम होने की वजह यह है, उसमें जो इल्लत पाई जाती है वो ये है कि वो नशा देती है। क्योंकि ये इल्लत नबीज में भी पाई जाती है या अफ्यून में भी पाई जाती है, तो इसको उस हुक्म यानी हराम होने में उसी के साथ शामिल कर दिया गया। अब जो नबीज थी या अफ्यून था, उसका हुक्म किताब सुन्नत में बरह रास्त मौजूद नहीं था, जबकि शराब का हुक्म मौजूद था। तो मुश्तरक इल्लत की वजह से जो हुक्म शराब का था वही हुक्म अफ्यून पे लगा दिया गया। इसको कियास कहते हैं। जहाँ किताब सुन्नत का न कोई नस हो, न इजमा, और न किसी सहाबी का कौल, वहाँ कियास को इख्तियार करना और उसे हुज्जत मानना जमहूर सहाबा, ताबीन, आइम्मा अरबा और दूसरे फुकहा का मसलक है। इमाम शाफी ने, जिन्होंने सबसे पहले इस पर बहस की और इसके कवायद व ज़वाबित बयान किए, उसका शुमार इज्तिहाद के हम माना लफ्ज के तौर पर किया है। जमहूर उलमा ने कियास की हुज्जियत पर कुरान, सुन्नत, आसार सहाबा और अकली मंतक से इस्तदलाल किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तो इस आयत में कहा यह गया है कि अगर तुम्हारा तनाज़ा हो जाए तो तुमने क्या करना है कि उस तनाज़ा को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा देना है। अगर तुम जो है ईमान रखते हो अल्लाह और यौम आखिरत पर। तो इसका मतलब यह है कि इस्तदलाल का पहलू यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ किसी चीज़ को फेरना उसी वक्त मुमकिन है जब ये मालूम हो कि अल्लाह और रसूल का अपने अहकाम से असल मकसूद क्या है। और ये इसी उसी वक्त मुमकिन है जब उन अहकाम में पाई जाने वाली इल्लतों को मालूम किया जाए। और इसी का नाम कियास है। यानी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है, तो ये तभी पता चल सकता है कि बंदा देखे कि वो हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने क्यों दिया था, उसकी वजह क्या थी, उसकी रीजन क्या थी, उसकी इल्लत क्या थी। तो और इन्हीं इल्लतों को मालूम करने का नाम जो है वो कियास है। दूसरी आयत में है फाताबिरु या उलिल अबसार, ए बसीरत रखने वालों इबरत हासिल करो। यहाँ फाताबिरु
کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں پر قیاس کرو جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کیونکہ تم بھی انہی جیسے انسان ہو، اس لیے اگر تم بھی وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیے تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو فاتابرو سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی ان لوگوں پہ قیاس کرو، اگر ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے عذاب کا سامنا ہوا تھا تو تم بھی انسان ہونی کی طرح کے، اگر ان کو عذاب کا سامنا ہوا تھا تو تم بھی انہی کے جیسی حرکتوں کی وجہ سے اس عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو۔ تیسری آیت میں ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو یعنی اس میں بھی غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ انسان کو، تو اسی طرح انسان قیاس کر لے کہ اگر وہ پیدا کر سکتا ہے پہلی مرتبہ تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قبیلہ خثم کی ایک عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے باپ کو فریضہ حج نے اس حال میں لیا ہے کہ وہ بوڑھا اور مستقل طور پر معذور ہو چکا ہے اور حج نہیں کر سکتا، کیا اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یعنی وہ حج کیے بغیر حج نہیں اس نے کی، اور لیکن وہ مستقل طور پہ معذور ہے، اب حج نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہارے باپ کے ذمہ کوئی قرضہ ہوتا اور تم اسے ادا کر دیتی تو اسے کوئی فائدہ ہوتا؟ اس نے کہا جی ہاں ضرور فائدہ ہوتا۔ فرمایا تو اللہ کا قرض اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے، یعنی اگر اس پہ قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کر دیتی تو اس قرض کی ادائیگی کا اس کو فائدہ ہوتا نا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمجھ لیجئے کہ قیاس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم اپنے اس حج کے معاملے کو قرض کے اوپر قیاس کر لو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کی بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنا، اس نے اسے اپنانے سے انکار کیا۔ اس آدمی نے اس کو اپنانے سے انکار کر دیا کہ اس کا رنگ سیاہ کیوں ہے، یعنی اس کا رنگ اپنے باپ یا ماں جیسا کیوں نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا ان کا کیا رنگ ہے؟ اس نے کہا سرخ۔ فرمایا کیا ان میں کوئی بھورے رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا تو وہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا شاید کوئی رگ ابھری ہے۔ فرمایا اور یہ بھی شاید کوئی رگ ابھری ہے۔ تو یعنی یہاں بھی ایک قیاس کیا گیا ہے کہ اس آدمی کو اپنے بیٹے کے رنگ کی وجہ سے شک ہو رہا تھا کہ شاید یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک اصول کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی بھورے رنگ کے اگر کوئی اونٹ ہوں، کوئی سرخ رنگ کے اونٹ ہوں، تو کیا ان میں سے کوئی برے رنگ کا بھی پیدا ہو جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں پیدا ہو جاتا ہے برے رنگ کا بھی۔ تو آپ نے فرمایا کیوں پیدا ہوتا ہے، کس لیے پیدا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ شاید کوئی اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی رگ ابھر آتی ہے، اس کی طرف وہ چلا، اس کا رنگ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شاید یہ بھی جو کالے رنگ کا پیدا ہوا ہے کوئی رگ ابھر گئی ہوگی آباء و اجداد میں سے کسی کی طرف، وہ اس کی مشابہت ہوگی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی قیاس کا اصول اختیار کیا گیا ہے، قیاس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نماز میں ان کی امامت پر قیاس کیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نماز پڑھا رہے تھے، تو اسی چیز کو قیاس کیا گیا، آ، آ، ان کی جو خلافت تھی اس کو قیاس کیا گیا ان کی امامت پر، یعنی ان کو اس بنیاد پہ خلافت کا اہل سمجھا گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں امامت کروا رہے تھے۔ شراب پینے پر حد کو قذف کی حد پر قیاس کیا، یعنی جو شراب پینے کی حد ہے وہ کوئی متعین نہیں کی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ اس کے بارے میں الگ الگ اقوال آتے ہیں کہ کیا حد تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو حد تھی شراب پینے کی اس کو 80 کوڑے متعین کر دیا تھا، اور ان کا استدلال یہ تھا کہ ایک شخص جب شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد وہ اول فول بکتا ہے، بہتان لگا دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے، تو جو سزا تہمت کی ہے، قذف کی ہے، یعنی قذف کی حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہے، تو اسی طرح جو شراب پینے کی بھی حد ہوگی اس کو 80 کوڑے ہونا چاہیے۔ نکاح و طلاق میں غلام کو لونڈی پر قیاس کیا،
हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो खत लिखा उसमें वो कहते हैं, फिर अगर कोई आपको ऐसा मामला दरपेश आए जिसका हुक्म आपको कुरान और सुन्नत में ना मिले तो उसे समझने की कोशिश करें, फिर मामलात को एक दूसरे पर कियास करें और एक जैसे मामले को पहचानें, फिर अपनी राय के मुताबिक जिसे अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा और हक से करीब तर पाएं उसे इख्तियार करें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में रिवायत है कि उन्होंने कियास को हुज्जत बनाया। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इलामुल मुवक्किन के पहले हिस्से में कई सहाबा के फतावा नकल किए हैं जिनकी बुनियाद उन्होंने कियास पर रखी। अकली मंतिक का तकाजा भी यह है कि कियास को एक ऐसी चीज होना चाहिए जिसका फितरत तकाजा करती और लोगों की जरूरत उसकी दावत देती है, क्योंकि कुरान और सुन्नत में मज़कूर अहकाम महदूद हैं लेकिन क़यामत तक लोगों की ज़रूरियात और मसाइल गैर महदूद हैं और उनकी कोई इंतहा नहीं है। इसलिए नागजिर है कि क्यास ही वो फ़िक़ही माखज़ हो तो शरई अहकाम जानने में लोगों की ज़रूरियात और मसाइल का साथ दे, क्योंकि जो मसाइल हैं लोगों के वो तो ना ख़त्म होने वाले हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और जो शरीयत के अहकामात हैं वो तो महदूद हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि क्यास के उसूल को, इस प्रिंसिपल को इख्तियार करके नई चीजों पर भी वैसा ही हुक्म लगाया जाए जो कि उसी तरह की चीजों में नसूस के अंदर मौजूद है। अहले सुन्नत में से ज़ाहिरिया ने क्यास की हुज्जियत का इनकार किया। वो इसको हुज्जत नहीं मानते क्यास को, और दीनी मसाइल में उसके इस्तेमाल को बातिल करार दिया है। किताब और सुन्नत और इजमा के बाद उनकी निगाह में अगर कोई चीज हुज्जत है तो वो किताब और सुन्नत के किसी नस या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फेल या इकरार यानी तकरीर जो है, या उलमा के इजमा से इस्तदलाल है। इब्न हजम रहमहुल्लाह ने, जो दाऊद बिन अली के बाद ज़ाहरिया के दूसरे इमाम हैं, क्यास के कायल उलमा के दलाइल का सख्ती से रद्द किया है और उनके क्यास पर मबनी बहुत से मसाइल में उनका तजाद वाजे किया है और फिर इस्तदलाल ही के जायज और सही होने के दलाइल दिए हैं। तवालत के अंदेशे से हमने उन्हें यहाँ नकल नहीं किया, जो साहिब उन्हें मालूम करना चाहें वो उनकी किताब अल इहकाम फी उसूलिल अहकाम के आखिरी दो हिस्सों का मुताला कर सकते हैं। शेख अबू जोहरा ने अपनी किताब उसूल फिक में उनका खुलासा दे दिया है और इब्न कय्यम ने इलामुल मुवक्किन में उनका रद्द किया है। हम इस बाब में अगरचे जमहूर के साथ हैं और इब्न हजम की सबसे मुनफरिद राय की तायद नहीं करते, ताहम ये कहते हैं कि क्यास की हुज्जत का इनकार अगर अगर अहले जाहिर को नसूस किताब सुन्नत के मानी में शारी की मुराद से तफसीर की तरफ ले गया है, जैसे यानी ऐसा हुआ है कि जो ज़ाहरिया हैं उन्होंने क्यास का इनकार करके एक जो है इफरात व तफरीद का शिकार हुए, इफरात का शिकार हुए हैं, तो दूसरे लोग क्यास के प्रिंसिपल को उन्होंने इतना ज्यादा फैला दिया कि वो भी तफरीद का शिकार हो रहे हैं, तो बैलेंस राय नहीं रही है। तो अगर ज़ाहरिया ने ये काम किया है कि उनका ये कहना कि अगर आदमी घड़ा भर पेशाब करे और उसे पानी में उंडेल दे तो भी वो पानी नापाक नहीं होता, लेकिन अगर वो खुद उसमें पानी उस पानी में पेशाब करे चाहे इंतहाई थोड़ा सा, तो उससे वो पानी नापाक हो जाता है। क्योंकि नस में यही आया है। तो चूंकि जो ज़ाहरिया हैं वो क्या करते हैं कि चूंकि क्यास के प्रिंसिपल के वो कायल नहीं है, तो चूंकि नस में ये बात आई है कि कोई शख्स अगर खड़े पानी में पेशाब करता है तो वो पानी नापाक हो जाता है, तो वो ये कहते हैं कि अगर एक शख्स खड़े पानी में पेशाब करता है तो वो पानी नापाक हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा करे कि वो एक घड़े में पेशाब भर के लाए और उसको उस पानी में उंडेल दे तो वो पानी पाक रहता है, वो नापाक नहीं होता, क्योंकि ये नस में इसका तस्करा नहीं आया। नस में इस बात का तस्करा आया कि वो खड़े पानी में पेशाब ना करे। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर कोई इस तरह कर ले तो वो पानी नापाक नहीं होता। यानी क्यास के प्रिंसिपल के इनकार करने की वजह से अजीबोगरीब सूरत हाल सामने आती है। अ, और वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी सयाल चीज जैसे तेल, दूध और सिरका वगैरह, यानी कोई लिक्विड चीज है, में पूरे का पूरा कुत्ता या सुअर या कोई मरा हुआ जानवर गिर जाए तो वो सयाल चीज हलाल और पाक ही रहेगी, ठीक है, जब तक उसमें कोई तब्दीली ना आ जाए। लेकिन अगर घी में चूहा गिर जाए तो वो घी नापाक हो जाएगा, क्योंकि नस में यही आया, क्योंकि नस में चूहे का तस्करा आया है। तो वो कहते हैं कि चूहा गिरने से ही वो नापाक होगा, कोई कोई जो है वो चाहे सूअर भी गिर जाए तो वो नापाक नहीं होगा। तो राय और कियास के कायल हजरात ने नसूस के मानी में
وہ چیزیں داخل کر دی ہیں جو شاعر نے نہیں چاہی. یعنی اگر ظاہریہ جو تھے وہ ایک دوسری سائڈ پہ چلے گئے، افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، تو جو قیاس کے قائل ہیں وہ بھی افراط و تفرید کا شکار ہو گئے دوسری سائڈ پہ جا کے. جیسے ان کا یہ کہنا کہ اگر گندگی کا ایک قطرہ بھی سمندر میں گر جائے تو قیاس یہی ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے. ایک قطرہ بھی گر جائے تو قیاس یہی کہتا ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے. اسی طرح مائع کثیر بھی اس سے ناپاک ہو جائے گا چاہے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. اسی طرح ڈھیروں کی مقدار میں کوئی گھی یا تیل یا سرکہ یا دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا اگر اس میں پیشاب یا خون کا ایک قطرہ یا سور یا کتے کا ایک بال گر جائے. پھر ان حضرات میں سے بہت سو نے قیاس کے استعمال میں توسیع پسندی کا مظاہرہ کیا. اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو قیاس ہے اس کے ارکان کون کون سے ہیں، کتنے ہیں. تو قیاس کے چار ارکان ہیں. یعنی یہ چار چیزیں ہوں تو جو ہے قیاس کا جو پرنسپل ہے وہ سامنے آتا ہے. ان میں سے پہلی ہے اصل، فرع دوسری ہے فرع، تیسری ہے حکم، اور چوتھی ہے علت. تو اصل سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ جو شراب ہے اس کا حکم چونکہ پایا جاتا ہے نس میں تو اس کو اصل کہتے ہیں. اور فرع سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو اصل پہ قیاس کرنا ہے. افیون ہے مثال کے طور پہ تو اس کو فرع کہیں گے، وہ فرع ہوگی. تیسری جو چیز ہے وہ ہے قیاس کے ارکان میں سے حکم. یعنی جو حکم اصل کا تھا اس کو فرع پہ قیاس کیا جائے گا تو حکم یہ تیسرا جو ہے رکن ہے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے قیاس میں علت. علت سے مراد ہے وہ ریزن، وہ وجہ جس کی وجہ سے آ، اصل کا حکم فرع پہ لگایا جا رہا ہے. تو اصل کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں حکم پایا جاتا ہے اور وہ ہماری اوپر دی گئی مثال میں شراب ہے. اسے مقیس علیہ، محمول علیہ اور مشبہ بھی کہا جاتا ہے. قیاس کے قائل اکثر فقہا کے نزدیک اصل کا قرآن یا سنت میں سے کوئی نص یا اجماع ہونا ضروری ہے. یعنی اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ اصل کا جو حکم ہے نا، وہ قرآن یا سنت میں موجود ہونا ضروری ہے یا اجماع میں موجود ہونا ضروری ہے. مالکیہ کے نزدیک وہ نص یا اجماع سے استنباط کردہ کوئی قیاس بھی ہو سکتا ہے. ان کے نزدیک جو اصل کا حکم ہے نا وہ قیاس بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس کو نص یا اجماع سے ڈرائیو کیا گیا ہو، اور وہ اس صورت میں جب خود نص یا اجماع پر قیاس کرنا مشکل ہو. اس بارے میں ان کی سند یہ ہے کہ موطا میں امام مالک نے کتاب و سنت، اہل مدینہ کی اجماع اور صحابہ کے فتاوی سے ثابت شدہ احکام پر اپنے بعض قیاسات کی بنیاد رکھی ہے. یہ دراصل قیاس کو غیر معلوم حد تک وسعت دینے کے مترادف اور اپنی جگہ سمجھ میں نہ آ سکنے والی بات ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ قیاس کرتے خیر اصل وہ ہوتی ہے کہ جس کا حکم کتاب و سنت میں موجود ہو. فرع اس سے مراد وہ چیز ہے جسے اصل پر قیاس کر کے اس کا حکم معلوم کرنا مقصود ہوتا ہے، اور وہ ہماری اوپر دی گئی مثال میں نبیذ ہے. اسے مقیس، محمول اور مشبہ بھی کہا جاتا ہے. فرع میں دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی یہ کہ کسی نص میں اس کا ذکر نہ ہوا ہو، کیونکہ نص کی جگہ پر قیاس نہیں ہو سکتا. یعنی اگر وہ جو فرع ہے نا اس کا ذکر نص میں نہیں ہونا چاہیے. دوسری یہ کہ اس میں پائی جانے والی علت اتنی ہی ہو جتنی اصل میں پائی جانے والی علت ہے. پینے کی کسی چیز میں نشہ اگر اتنا ہو جتنا وہ شراب میں ہے تو وہ اس پر قیاس کرتے ہوئے اسی کی طرح حرام ہوگی، ورنہ اس کی حرمت اس کے برابر نہ ہو. علت میں علت اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ اصل میں پائی جاتی ہے. حکم اس سے مراد، یعنی جو تیسرا رکن ہے، اس سے مراد وہ شرعی حکم ہے جو اصل میں آیا ہے اور اسے فرع میں متعدی کرنا مطلوب ہے، یعنی اپلائی کرنا مطلوب ہے، اور وہ ہماری اوپر دی گئی مثال میں شراب کی حرمت ہے. قیاس سے فرع میں جو حکم ثابت ہوتا ہے اور وہ ہماری دی ہوئی مثال نبیذ کی حرمت ہے، وہ قیاس کا نتیجہ ہوتا ہے، قیاس کا رکن نہیں. اصل کے حکم کو فرع تک متعدی کرنے کی کئی شرائط ہیں. یعنی کچھ شرائط ہیں
کہ किस वक्त जो असल का हुक्म है उसको फरा पर अप्लाई किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो उनमें से पहली शर्त यह है कि वो हुक्म शरई और अमली हो, क्योंकि फिकी मसाइल का ताल्लुक सिर्फ आमाल से है। तो पहली बात यह है कि उस वो जो हुक्म है ना वो शरई और अमली होना चाहिए, क्योंकि जो फिका होती है ना, फिका का ताल्लुक वो अमली अहकाम से होता है, ना कि जो अकायद से मुतल्लिका चीजें हैं उनसे नहीं फिका का ताल्लुक होता, बल्कि अमली चीजों से इसका ताल्लुक होता है। तो पहली शर्त यह है कि वह हुक्म शरई और अमली हो, क्योंकि फिकी मसाइल का ताल्लुक सिर्फ आमाल से होता है। दूसरी शर्त यह है कि वो समझ में आ सकने वाला हो, यानी अकल उसकी इल्लत का इदराक कर सकती हो। यानी वो कोई ऐसी चीज हो कि जो हवासे खमसा में आ सकती हो, समझ में अकली जो अकल में आ सकने वाली चीज होनी चाहिए, उसकी इल्लत का इदराक कर सकती हो, यानी अकल उसकी इल्लत का इदराक कर सकती हो। और वो उस दलील से कि उसकी वो इल्लत नस में मज़कूर हो या किसी और दलील से, चाहे हुक्म की उससे इब्तदा होती हो और वो किसी दूसरे हुक्म से इस्तिस्ना ना हो, जैसे शराब के पीने और मर्दार का गोश्त खाने की हुर्मत, और चाहे वो किसी दूसरे कुल्ली हुक्म से इस्तिस्ना हो जैसे रुखसतें। तो बस इसके बारे में ये समझ लें कि दूसरी शर्त यह है कि वो ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो हवासे खमसा में आ सकती हो, समझ में आ सकने वाली हो, अकल में आ सकती हो। तीसरी जो शर्त है वो ये है कि उसकी इल्लत के किसी दूसरी चीज में पाए जाने का तसव्वुर ना किया जा सकता हो, जैसे सफर में नमाज का कसर करना, क्योंकि इसकी इल्लत यानी सफर का मुसाफत तय करने के अलावा किसी दूसरी चीज में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो वो जो इल्लत है वो किसी दूसरी चीज में ना पाई जाए। मिसाल के तौर पे जो नमाज कसर करने की जो इल्लत है वो सफर है, तो सफर तभी होता है जब मुसाफत तय की जाती है। सफर इसके अलावा नहीं हो सकता। अगर मुसाफत तय होगी तो सफर होगा, अगर मुसाफत तय नहीं होगी तो उसको सफर हम कहते ही नहीं है। तो चौथी शर्त यह है कि उसकी किसी से खुसूसियत साबित ना हो, यानी वो जो हुक्म है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी के साथ खास हो, किसी के साथ खास हो। मिसाल के तौर पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास थी। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4 से ज्यादा शादियां करना, तो ये अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, वो आपके साथ खास है। तो वो चीज खास नहीं होनी चाहिए किसी भी शख्सियत के साथ, या जो है किसी सहाबी के साथ वो खास हो। मिसाल के तौर पे हजरत खुजैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, अन्हु की शहादत का दो आदमियों की शहादत के बराबर होना, तो जो हजरत खुजैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की गवाही है उसको दो सहाबा की गवाहियों के बराबर करार दिया गया। तो ये जो वस्फ है, ये जो खासियत है, ये उन्हीं के साथ खास थी। कोई और शख्स, कोई और सहाबी, कोई और इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी एक गवाही को दो सहाबा की गवाहियों के बराबर करार दिया गया हो। तो जब असल के हुक्म को फरा पर लागू करना है, अप्लाई करना है, तो उसकी कई शर्तें हैं। तो ये 4 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। अगली चीज है इल्लत। जो चौथा रुकन है कियास का वो है इल्लत, यानी वो जो जिस वजह से, जिस रीजन की वजह से असल का हुक्म फरा पर लगाया जा रहा है उसको इल्लत कहते हैं। ये कियास का अहम तरीन रुकन है, और इससे मुराद वो वस्फ है जो असल और फरा में मुश्तरका तौर पर पाया जाता है, और इसी की बुनियाद पर असल के हुक्म को फरा तक मुतद्दी किया जाता है। और वो हमारी ऊपर दी गई मिसाल में नशा है जो शराब और नबीज दोनों में पाया जाता है। इल्लत की भी कुछ शराइत है, यानी जो इल्लत है, इल्लत इल्लत जो है, कोई भी इल्लत इल्लत कैसे बनेगी, तो उसकी कुछ शराइत हैं। यानी एक चीज है ना, मिसाल के तौर पे अफ्यून है, तो उसकी इल्लत कौन सी होगी कि हम जो शराब का हुक्म है वो अफ्यून पे लगाएंगे लगाएंगे क्योंकि इल्लत तो एक से जायद भी हो सकती है ना। मिसाल के तौर पे जो रिजेम्बलेंस है वो उसके कलर में भी हो सकती है, वो उसके जायके में भी हो सकती है। तो इल्लत कौन सी ऐसी चीज होगी कि जिसकी बुनियाद पे हम कहेंगे कि ये वाली जो इल्लत है, इस इल्लत की बुनियाद पे शराब का हुक्म अफ्यून पे लगाया गया है। तो इस उस इल्लत को तलाश करने की भी कुछ शराइत है कि कौन सी चीज ऐसी होगी जिसको हम इल्लत करार देंगे, उसके रंग को इल्लत करार देंगे, उसके जायके को इल्लत करार देंगे, या कोई और चीज होगी। तो उसकी कुछ शर्तें हैं।
पहली शर्त यह है कि वो कोई जाहिर वस्फ होना चाहिए, यानी वो ऐसा वस्फ होना चाहिए कि जो हवासे खमसा में आ सकता हो, यानी ऐसा वस्फ जिसका ज़ाहरी हवास में से किसी हादसे के जरिए इदराक हो सकता हो। जैसे शराब में नशे का होना और सगे भाई को सिर्फ बाप की तरफ से भाई होने वाले पर मुकदम करने में रिश्तेदारी का मजबूत तर होना। तो ये चीज हवासे खमसा में आ रही है कि जाहिर है कि शराब में नशा पाया जाता है, ये बात समझ में आ सकने वाली है। इसको जो हवासे खमसा हैं वो इसका इदराक कर सकते हैं। अगर एक शख्स ऐसा है कि वो अ, अपने माँ बाप का हकीकी बेटा है, और एक शख्स ऐसा है कि वो अपने माँ बाप का हकीकी बेटा नहीं है, वो जो है सिर्फ बाप की तरफ से, उसकी जो माँ है वो हकीकी नहीं है, वो किसी दूसरी माँ से है, तो जो हकीकी बेटा है उसको विरासत में उस लड़के पर ज्यादा फौकियत हासिल होगी। तो ये बात समझ में आ सकने वाली है कि उसको फौकियत देने की वजह यह है कि वो हकीकी बेटा है, वो माँ का भी हकीकी बेटा है और बाप का भी हकीकी बेटा है। तो ये बात समझ में आ सकने वाली है कि उसको इस वजह से दूसरे बेटे पर, जो कि स्टेप सन है, उस पर फौकियत दी जा रही है। दूसरी शर्त यह है कि वो मुंजबित हो, वो जो इल्लत है वो मुंजबित होनी चाहिए, यानी वो एक जाब्ते में कोई चीज हो, कोई ऐसी चीज हो जिसको लॉ बनाया जा सके, जिसको कोई उसूल बनाया जा सके। तो वो चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको इल्लत बनाया जा रहा है, कि जिसको लॉ बनाया जा सकता हो, जिसको उसूल बनाया जा सकता हो। मिसाल के तौर पे जब इशारा जो है वो सुर्ख होता है, लाल बत्ती होती है, तो सबको पता है कि वो उस पे रुकना, उस पे रुकना है। तो इल्लत कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिसको लॉ बनाया जा सकता हो, जो कि जो है उसूल बन सकती हो, जिस तरह के सुर्ख इशारे पे रुकना। तीसरी शर्त यह है कि वो कोई मुनासिब वस्फ होना चाहिए। मुनासिब वस्फ से मुराद यह है कि उसकी कोई अकली मुनासबत होनी चाहिए, यानी उसके पाए जाने से शारे का वो मकसद पूरा होता हो जो उसने हुक्म के जरिए से चाहा है। यानी वो जो उसकी अकली मुनासबत ऐसी होनी चाहिए कि शारे यानी अल्लाह ताला जो हुक्म दे रहे हैं, वो जिस मकसद से दे रहे हैं वो मकसद पूरा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर शराब से मना किया है, तो उसका मकसद ये है कि एक शख्स जो है अपनी अकल को जायल ना करे शराब के जरिए, और नशे में आके वो कोई ओल फोल ना बके, कोई इस तरह की हरकतें ना करे, और अपनी अकल को सलामत रखे। तो मकसद ये है, तो इसी वजह से जो अफ्यून है, उससे भी मकसद ये है कि वो उसको ऐसा नशा, उसको वो नशे में ना आए और उसकी अकल सलामत रहे। तो इससे भी शरीयत का जो एक मकसद है वो पूरा हो रहा हो। तो तीसरी शर्त यह है कि वो कोई मुनासिब वस्फ होना चाहिए। चौथी शर्त यह है कि वो मुताद्दी वस्फ हो, यानी सिर्फ अपने असल के साथ ही खास ना हो, बल्कि उसके अलावा उसका किसी दूसरी चीजों में पाया जाना भी मुमकिन हो। यानी वो मुताद्दी होना चाहिए। चौथी शर्त यह है इसकी इल्लत की, वो ये है कि वो मुताद्दी होना चाहिए, यानी वो कोई ऐसा वस्फ ना हो कि जो असल के साथ ही खास हो। यानी वो जो नशा पाया जाता है वो सिर्फ असल में ही पाया जाए, किसी और चीज में नशा पाया ही ना जाता हो, तो जाहिर है कि उसको हम उस पर क्यास कर ही नहीं सकते। तो चौथी शर्त ये होनी चाहिए कि जिस तरह शराब में नशा पाया जाता है, किसी और चीज में भी नशा पाया जाना चाहिए। अगर किसी और चीज में नशा पाया ही नहीं जाएगा, तो उसको जो है अप्लाई किया ही नहीं जा सकता। यानी वो चीज जो है सिर्फ अपने असल के साथ खास ना हो, बल्कि किसी और जगह पे भी पाई जाए। चौथी शर्त यह है कि वो मुतअद्दी वस्फ हो, यानी सिर्फ अपने असल के साथ ही खास ना हो, बल्कि उसके अलावा उसका किसी दूसरी चीजों में पाया जाना भी मुमकिन हो। जैसे शराब में नशा, क्योंकि वो मुतअद्दी है और उसका शराब के अलावा पीने की बाद दूसरी चीजों में पाया जाना मुमकिन है, और इसीलिए उन दूसरी चीजों को हराम करार दिया जाता है। ये जो हमने अब तक बताया वो क्यास के अक्सर कायल फुकहा का मसलक है, मालिकिया और हम्बलिया के एक ग्रोह इमाम इब्न तैमिया। तो बुनियादी बातें जो क्यास के हवाले से ना यही हैं। तो इसके चार अरकान हैं, और उन अरकान की अ, बाज तफसीलात हैं आगे। उसके मुनासिब होने के लिहाज से इल्लत की कुछ अकसाम हैं, और इल्लत के मसालिक हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसमें अगर कोई मुश्किल हो तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं। तो एक दो तीन सफ़े बाकी हैं, इनको आप खुद देख लीजिएगा। तो आज के
लेक्चर में हमने जो इसके शरीयत के सोर्सेज हैं, उनमें से दो मसादिर का, दो सोर्सेज का मुताला किया है। उनमें से एक जो है वो अक़वाल सहाबा है, और दूसरा जो है वो क्यास है, जिसके चार अरकान होते हैं, और उसकी हमने कुछ तफसीलात पढ़ी हैं। तो इसको आप क्यास का जो 2-3 सफ़े बाकी रह गए हैं उसको आप खुद देख लीजिएगा।